Hello everyone. In this video, I'm going to explain you the tips of direct and indirect speech. Here's tip first. I will discuss here rules of the direct and indirect speech also. Conversing rules as per the reported verb. First of all, I want to tell you there are the two parts of sentences, that is reported part speech or reported verb. See this one, he said. This is your reported verb. I am unwell. This is your reported speech. When the reported or the principal verb in the past tense, जब आपकी reported और principal verb past tense में होती है, all present tense in the indirect are changed into the corresponding past tense. जो भी आपके direct में present tense होते हैं वो पूरे past tense में change होते हैं. For example, he said I am unwell. I am changed into was. He was unwell. If the reported verb is in the present or future tense, अगर आपकी reported verb इस साइड वाला present और future tense में आ जाता है, the tenses of the direct speech don't change. जो आपका tense है direct speech का वो कभी भी change नहीं होता. For example, he says, he will say I am unwell. Here this is a present tense and this one is a future tense. तो आपका इसमें कुछ भी change नहीं होगा, वही tense है आपका जो same रहेगा. The tenses in the indirect speech is not changed if the words within the quotation mark talk to the universal truth और habitual action. जो आपके tense है indirect speech में वो change नहीं होता अगर आपका quotation mark है जो universal truth या फिर habitual action की बात करता है. मतलब कोई जो आपकी universal truth है, सदीवी सच्चाई है, अगर उसकी बात की जाती है या habitual action की बात की जाती है तो आप इसको change नहीं करते हो. They said वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. तो यहाँ पे भी देखिए हम पानी के बिना नहीं रह सकते. दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. सो यू विल ऐड जस्ट यू विल ऐड जस्ट दैट in spite of these inverted commas. टिप नंबर 2, कन्वर्ट रूल्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अगर आपका प्रेजेंट टेंस है उसको कैसे चेंज करोगे. फॉर एग्जांपल यू कैन सी प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट. सिंपल प्रेजेंट है जो सिंपल पास्ट में चेंज होगा. लाइक आई एम अनहैप्पी. सी सैड, उसने कहा. ये देखिए सी सैड यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, दैट. एम चेंज इनटू वाज. आई चेंज इनटू शी. Present continuous tense change into the past continuous tense. For example, you can see I am reading a book. Here we will change am change into was, I change into he. Next, past present perfect to past perfect tense. She said she has finished. This is a has will change into had or other sentence will remain same. Present perfect change into the past perfect. Here you can see कि जो आपका यहाँ पे हैव है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा. कन्वर्जन रूल ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर टेंस. जो आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस होता है परफेक्ट में चेंज होता है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर इज द सेकंड फॉर्म, यू कैन सी हियर इज अ हैड प्लस थर्ड फॉर्म. जो कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जांपल यू कैन सी वर लिविंग चेंज इनटू had been living. Future change into the present conditional. For example, will be change into would be. Next is a present continuous future continuous change into a continuous condition. For example, will be using would be using. नेक्स्ट चेंज इन द मॉडल्स. मॉडल्स में कैसे चेंजेस होती हैं. जो आपका कैन है किस में चेंज होता है, कुड में. एग्जांपल देखिए यहाँ पे कैन है, यहाँ पे कुड है. मे चेंज होता है माइट में. ये आपका मे है, ये आंसर में आपका क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे. मस्ट चेंज होता है आपका हैड टू में. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मस्ट हैड टू. मॉडल्स डू नॉट चेंज होता है आपका वुड. ये सारे जो भी वर्ड्स हैं इनमें जो आपका शुड है, देखिए शुड बी के साथ चेंज हो रहा है. कन्वर्जन ऑफ द इंटेरोगेटिव. जब आप इंटेरोगेटिव को चेंज करते हो तो कैसे चेंज करते हो, व्हाट आर यू डूइंग. जैसे आपसे पूछा गया ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग. ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. यू चेंज इनटू आई, आर चेंज इनटू वाज. If sentence being with the auxiliary verb, the joint clauses should be if the weather. For example, you can say here we are changing into will, weather. Or next, if the sentence contains a W family, like this is a where, so you will use inquired word.
नेक्स्ट टिप नंबर 6, कमांड और रिक्वेस्ट एक्सप्लेनेशन। जब आप किसी से कोई ऑर्डर करते हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो या किसी को कोई एक्सक्लेमेशन मतलब हैरानीवाचक में कुछ शो करते हो, किसी से कुछ विश करते हो, तो आप ये वाले वर्ड्स यूज करते हो। इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब्स लाइक ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड एंड सुजेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन use these one word forbid used to the negative sentence. The imperative mood is changed with the indefinite. For example you can say, here the word ordered is used, here the word requested is used. Next is exclamations or wishes. You will use alas और exclaimed sadly, ऐसे ही ये वर्ड यूज़ करोगे. चेंज ऑफ pronoun, द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. लाइक ये आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग. रिपोर्टेड स्पीच क्या है, शी, तो आपका आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी. द सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सेकेंड पर्सन है यू चेंज इन टू दे बिकॉज दिस इज अ दैम चेंज इन टू दे. द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डोंट चेंज. जो थर्ड पर्सन है आपका वो चेंज नहीं होता, दैट रिमेन ऑलवेज सेम. लाइक यू कैन सी एग्जाम्पल. चेंज ऑफ द प्लेस एंड टाइम, द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग nearness of the time and the place in the indirect speech are generally changed into the words expressing distance into the indirect speech. For example, now change into then, here change into there, ago change into before, thus change into so, Tuesday change into that day, and your tomorrow change into the next day, this change into that, yesterday change into the day before, these those, hither thither, come go, hence thence, the next month, following month. Direct or indirect speech, you can see here some examples. Next, punctuation mark. You will see कि if there is any punctuation mark used, like these are the punctuation mark, these are the punctuation mark, so you will convert according to the reported speech. Like in the answer also we will use the punctuation mark. If the direct speech come after the information about what we are speaking, comma is used to introduce the piece of speech placed before the first converted comma. तो यहाँ पे comma का word use करेंगे हम उसको separate करने के लिए. नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन ऑफ द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. यूज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब से और सेट टू. हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, से और सेट टू रिपोर्टेड वर्ब यूज़ करते हैं. रिमूव करते हैं तो इसको कैसे, कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं दैट लगाते हैं. जो क्विटेशन मार्क है, अपने क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन है, मूड ऑफ द सेंटेंस है, वो यूज़ करते हो. कॉमा यूज़ करते हो हर एक स्टेटमेंट के आफ्टर. राइट फर्स्ट वर्ड जो आप यूज़ करते हो कैपिटल लेटर के साथ. और जो चेंज करते हो प्रेजेंट टू पास्ट, जो भी आपको रूल एक्सप्लेन किए हैं. जो कन्वर्ट करते हो पास्ट को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हो. हियर वांट टू से यू समथिंग. आपको एक रूल लर्न करना है. सन, सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन कौन है, जो बोल रहा है, लाइक आई, मी, माइन. जो कौन है, बोलने वाला है, जो मैं बोल रही हूँ, मैं फ़ोन हूँ. फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, लाइक आप लोग मेरे को सुन रहे हो, दैट यू आर द सेकंड पर्सन, यू यूएस. तो थर्ड पर्सन क्या है, दैट रिमेन अनचेंज. जो भी थर्ड पर्सन है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ योर थर्ड पर्सन. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग.